Good morning, my dear students. I wish you a very happy and healthy morning. My dear students, आज हम प्रीवियस क्लास के चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे, लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर स्टोरी। प्रीवियस क्लास में हमने हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, वर्कशीट 1 एंड 2 करी थी। साथ में हमने ट्रांसलेटर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर के में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी। और आज हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड वर्कशीट 3rd एंड 4th करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So my dear students, our today's topic is software. So before starting the software, first we know what is computer. Okay, what is computer? A computer is an electronic device that manipulate information or data. Okay, so it manipulate the information or data. It has the ability to store, retrieve and process the data. By the use of computer, we can store and process the data, and we can sending the email by the use of computer. We can type the document, we can save the document, we can play the games online, offline, we can surf on internet by using computer, and many more uses of a computer. So after the understanding of computer, now we come to the component of a computer. There are two type of component of a computer. First is hardware and second is software. The physical part of the computer is called hardware, and in another language we can say hardware is any part of our computer that has physical structure like keyboard, mouse, etc. And what is software? Software is any set of instruction that tells the hardware what to do and what to do it, sorry, and how to do it. Okay, so what is software? Software is set of instructions. इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि हम उसे क्या करना है एंड कैसे करना है, क्या करना है और साथ में उसे किस तरीके से करना है ये भी। और इन अनदर लैंग्वेज वी कैन से व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स विच मेक द कंप्यूटर वर्क। वो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर जो वर्क करता है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर. ओके, सो आफ्टर द learning software, now we come to the classify the software. There are 3 type of software. First is system software, second is application software, and third is utility software. So first we come to the what is system software. The system software works at the internal level of the computer and instruct the computer how to manage its resources. Okay, so system software जो होता है वो internal level पे work करता है और कंप्यूटर को instruct करता है, instructions देता है कि किस तरीके से कंप्यूटर को अपने resources को manage करना है. Here what is resources? Resources means hardware और software. Okay, and hardware and software के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि hardware क्या होता है and software क्या होता है. Example of system software are operating system, assembler, compiler or interpreter. First is assembler. What is assembler? Assembler convert the assembly language into machine language. While what is compiler or interpreter? Compiler or interpreter convert high level language into machine language. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार ही कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर होता है वो एक एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है. ठीक है, ये किस में डिफरेंस हुआ? कंपाइलर और इंटरप्रेटर में. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज सो इम्पॉर्टेंट? Operating system is important because it is responsible for providing an interface between the user and the computer. User जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है एंड कंप्यूटर, इन दोनों के मिड में, इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है. ठीक है, इंटरफेस प्रोवाइड कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट्स वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ वी कम टू द सेकेंड सॉफ्टवेयर, that is application software.
So what is application software? The application software makes the computer useful for people so that they can use them for different purpose. It helps the user to work more efficiently, faster and more meaningfully. For example, web browser, MS Excel, MS Word, library management. All of them are example of application software. देखो एम एस एक्सेल हमने पढ़ा है इसलिए एम एस एक्सेल की बात करते हैं. एम एस एक्सेल में जब हमने एम एस एक्सेल की स्टडी करी थी तो हमने पढ़ा था कि एम एस एक्सेल होता है उसमें एक्यूरेटली और रैपिडली वर्क होता है. और यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिमांड है कि एफिशिएंटली होना चाहिए एंड फास्टर होना चाहिए. ठीक है, तो एम एस एक्सेल किसका एग्जाम्पल हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का. सो फर्दर वी डिवाइड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट इज general purpose application software and the second is custom made application software. So first we come to the general purpose application software. It provides the environment to develop custom made software. For example, MS Access database management software का यूज़ करके, ठीक है, या इसके थ्रू हम स्कूल्स के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करते हैं. ठीक है, उसको बनाते हैं. अब यहाँ पे MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जांपल है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का. वाइल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम किसका एग्जांपल है? कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का. मीन्स जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फ्लैश. ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द सेकेंड application software, that is custom made application software. These are programs developed as per individual need. For example, library management, fee collection, accounting, hotel management. Means होटल की नीड के लिए होटल मैनेजमेंट ऐप डेवलप किया गया है. लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट, रिसेप्शन पे फ़ी कलेक्शन के लिए फ़ी कलेक्शन ऐप, एंड अकाउंटिंग के लिए टैली वगैरह जो है ये होते हैं अकाउंटिंग के ऐप होते हैं. ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल नीड के लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं. सो नाउ वी कम टू द वर्कशीट थर्ड, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश. मशीन लैंग्वेज किसे कंसिस्ट करती है? बाइनरी डिजिट्स को. एंड बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं? 0 and 1. सेकेंड, in dash you can write instruction in English like a statement. Answer will be high level language. Question third, a dash or in dash converts the high level language program into the machine language. कौन कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में? दैट इज कंपाइलर और इंटरप्रेटर. फोर्थ, एंड डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. मैंने आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. और क्यों है ऑपरेटिंग सिस्टम? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के मिड में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है. ओके. क्वेश्चन फिफ्थ, MS एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. MS एक्सेस किसका एग्जाम्पल है? जनरल पर्पज का. क्वेश्चन सिक्स, अ रिजल्ट मेकिंग सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. रिजल्ट मेकिंग यानी इंडिविजुअल नीड हो गई. तो इंडिविजुअल नीड के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? वो होता है कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोथ आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ वी कम टू द वर्कशीट 4, दैट इज मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज, द एलिमेंट्री लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर विच कंसिस्ट ऑफ 0 and 1. What is 0 and 1? 0 and 1 is binary digits. And another name of machine language is elementary language, low level language and binary language. Second, assembly language. In this language, operation codes were replaced by mnemonics. Third is high level language, programming language designed for users to write instruction in English like statement. फिफ्थ इज बाइनरी डिजिट्स 0 and 1, मैंने अभी आपको बताया था. फिफ्थ इज सॉफ्टवेयर सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. इसको हम ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, बोथ आर सॉफ्टवेयर. सो दैट्स फॉर टुडे चिल्ड्रन. थैंक यू.